ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سردیوں کی دھوپ نرم سی تھی۔ یونیورسٹی کے لان میں پھیلی روشنی میں سب کچھ جیسے نیا چمکتا ہوا لگ رہا تھا۔ ماہین کے ہاتھ میں نوٹس تھے، مگر نظریں بار بار سامنے بیٹھے اس شخص پر جا رکی تھی، بالاج خان۔ پوری یونیورسٹی میں اس کے نام کا ایک الگ روب تھا۔ لمبا قد، گہری آنکھیں، باتوں میں ٹھہراؤ اور انداز میں ایک ایسا وقار جو دلوں میں اترتا چلا جاتا۔ ماہی نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو دل کے کسی گوشے میں ایک چپ سی لگی تھی، جیسے دل خود سے کہہ رہا ہو، یہ وہی ہے۔ تمہیں ہمیشہ سے خاموش لوگ پسند ہے نا؟ ماہین کی دوست صوفیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر اتنے خاموش نہیں کہ دل کی بات بھی نہ بولیں۔ تو پھر تم ہی بول دو۔ صوفیہ نے شرارت سے آنکھ ماری۔ ماہین نے جھٹ نظریں جھکائیں، مگر مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ بالاج لائبریری میں اکثر اکیلا بیٹھا رہتا اور ایک دن ماہین کو موقع ملا۔ نوٹس گرتے، کتابیں اٹھتی، انگلیاں چھوتی اور شاید قسمت بھی اس چھو میں لکھا رہی تھی کچھ نیا۔ شکریہ، تمہیں بھی یہ سبجیکٹ پسند ہے؟ ہاں، مگر تم جیسا سمجھدار اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، بالاج نے مسکرا کر کہا۔ ماہین کے لیے وہ پہلی مسکراہٹ آج بھی یادگار بن گئی۔ رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ کلاس کے بعد کبھی لان میں بیٹھ کر چائے پینا، کبھی لائبریری کی خاموشی میں ہنسی چھپانا۔ بالاج کم بولتا تھا، مگر جب بولتا تو ہر لفظ میں گہرائی ہوتی۔ ماہین کو اس کی آنکھوں میں سکون محسوس ہوتا، جیسے وہ دنیا کے شور سے دور کسی محفوظ جگہ پر ہو۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ ماہین یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑی، گیلے فٹ پاتھ پر قدم جمائے ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بالاج کی آواز کے ساتھ اس کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ یہ بارش تمہیں نہیں چھوڑے گی، مگر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بالاج کے لہجے میں نرمی تھی، مگر ایک عزم بھی۔ ماہین خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی میں ہلکی سی خاموشی چھائی رہی، صرف وائپرز کی آواز تھی اور دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں۔ بالاج، اگر کبھی کسی سے محبت کرو تو اسے وقت دینا۔ محبت انتظار مانگتی ہے، شک نہیں، بالاج نے مسکرا کر کہا۔ اور اگر وہ خود محبت ہو تو؟ ماہین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے دل نے ایک وعدہ سن لیا ہو۔ دن گزرتے گئے، یونیورسٹی کا اختتام قریب آیا تو بالاج کے دل میں ایک خوف جاگنے لگا کہ کہیں یہ رشتہ ختم نہ ہو جائے۔ جیسے اکثر دوستیاں وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہیں، مگر ماہین کا رویہ مختلف تھا۔ وہ ہر ملاقات میں جیسے بالاج کے دل میں اعتماد کا بیج بو دیتی۔ پھر ایک دن بالاج نے فیصلہ کیا۔ امی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بالاج کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر دل میں اضطراب۔ ہاں بیٹا، بولو۔ میں ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالاج کی ماں چند لمحے خاموش رہیں، پھر مسکرائی۔ اگر تم نے دل سے چنا ہے تو یقیناً وہ اچھی لڑکی ہوگی۔ بالاج کے چہرے پر جیسے روشنی سی پھیل گئی۔ دوسری طرف ماہین کے گھر میں جب یہ بات چلی تو اس کے والد نے کہا، بالاج شریف لڑکا ہے، مگر محبت کی شادیاں آسان نہیں ہوتی بیٹا، سوچ لو۔ ابو، میں نے سوچ لیا ہے، بالاج صرف محبت نہیں، اعتماد بھی ہے۔ یوں دونوں خاندان راضی ہوئے اور نکاح کا دن طے ہو گیا۔ سفید لباس میں ملبوس ماہین آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سر پر دوپٹہ، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ دروازے کے باہر صوفیہ بولی، چلو دلہن، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ نکاح کے الفاظ گونجے، قبول ہے، قبول ہے۔ بالاج کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر آنکھوں میں نمی۔ اور جب ماہی نے وہی الفاظ دہرائے تو جیسے ان کے درمیان ایک خاموش دعا بن گئی۔ نکاح کے بعد بالاج نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر انگلی رکھی۔ اب تم میری زندگی ہو ماہین، مگر وعدہ کرو، کوئی راز، کوئی جھوٹ کبھی ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ ماہین نے دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں بالاج۔ کمرہ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ بالاج دروازے پر رکا رہا، نظریں جھکائے،
माहिन के चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट का इम्तिजाज था। बालाज ने आहिस्तगी से कहा, मैं नहीं जानता कि ख्वाब कैसे होते हैं, मगर तुम्हें देखकर लगता है शायद ख्वाब ऐसे ही होते हैं। माहिन ने हंसते हुए कहा, और हकीकत तुम हो। फिर वो रात तवील हो गई। कहानियां, बातें, यादें दोनों एक दूसरे की वजूद में उतरते गए। सुबह जब सूरज खिड़की से अंदर झांका तो बालाज ने धीरे से कहा, तुम्हारे बगैर ये कमरा खाली लगता। माही ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ूंगी। शादी के बाद के दिन जैसे ख्वाब थे, चाय के कप, मुश्तरका हंसी, एक दूसरे के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां। माहिन सुबह नाश्ता खुद बनाती, चाहे कितनी भी देर से सोई हो। बालाज दफ्तर जाने से पहले हमेशा कहता, तुम्हारी बनाई चाय ना मिले तो दिन अधूरा लगता है। एक दिन माहिन ने मोहब्बत से पूछा, बालाज, अगर कभी हम में गलत फहमी हो जाए तो? बालाज ने कहा, तो मैं तुम पर शक नहीं करूंगा, बल्कि तुमसे पूछूंगा। माहिन ने आंखें बंद करके दुआ की, काश ये भरोसा हमेशा कायम रहे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बारिश फिर से हो रही थी, बाहर आसमान स्याह था। माहिन अपने कमरे में मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। चेहरे पर परेशानी के आसार थे और दरवाजे के पीछे कोई खड़ा सब सुन रहा था। वो बालाज था। बारिश के कतरे खिड़की के शीशे पर हल्के हल्के बज रहे थे। कमरे में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, चाय, परफ्यूम और मोहब्बत की। बालाज सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। माहिन ने 2 कप चाय लाकर मेज पर रखी। कितने मसरूफ हो गए हो ना आप? बालाज ने सर उठाकर देखा। काम है, मगर तुम्हारी चाय के लिए हमेशा वक्त निकाल लेता हूं। माहिन मुस्कुराकर सामने बैठ गई। तुम्हें पता है, अम्मी कहती थी शादी के बाद बीवियों की बातें सुनना मुश्किल होता है, मगर मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी बातें सुनने में मजा आता है। बालाज ने चाय का घूंट भरा और नरमी से कहा, तुम्हारी आवाज में सुकून है, शोर नहीं। माही ने नजरें चुरा ली। उसे ये एहसास अच्छा लगता था कि कोई है जो उसकी बातों को और उसकी मौजूदगी को किसी कीमत पर मामूली नहीं समझता। दिन गुजरते गए। हर सुबह एक नया रंग लेकर आती। बालाज दफ्तर जाता तो माहिन खिड़की से देर तक उसकी गाड़ी को जाता देखती रहती। फिर घर के कामों में लग जाती, मगर अक्सर दिल चाहता कि वो लौट आए। कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। शामों में वो दोनों छत पर बैठकर चाय पीते। माहिन कभी अपनी यूनिवर्सिटी की बातें सुनाती, कभी कहती, बालाज, तुम्हें याद है जब पहली बार बारिश में तुमने मुझे छोड़ने की जिद की थी? और वो हंसता, तब भी तुम जिद्दी थी, अब भी हो। जिद्दी नहीं, बस किसी और की नहीं सुनना चाहती। तो फिर वादा करो, फिर किसी और की बातों में नहीं आओगी। माहिन ने खामोशी से सर झुका लिया। ये वादा दिल पर लिखा गया था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि एक दिन अचानक सब बदल गया। माहिन अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी की दोस्त सूफिया से कॉल पर बात कर रही थी। इसी दौरान उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया। हेलो माहिन, याद है मैं कौन हूं? माहिन ने चौंक कर देखा। नंबर अनजाना था, मगर अल्फाज में एक अजीब सा एतमाद था। आप कौन? उसने जवाब दिया। चंद लम्हों बाद पैगाम आया। जैन, याद नहीं? यूनिवर्सिटी की लैब, चॉकलेट और तुम्हारी हंसी। माहिन का दिल जैसे रुक गया। जैन, वही शख्स जो कभी उसका क्लास फेलो था, मगर जिसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे वो हमेशा दूर रही। जैन, तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? कहीं से नहीं, तुम्हारे एक दोस्त से। बस बात करनी थी। क्या बात? तुम खुश तो हो ना? माही ने तेजी से फोन बंद कर दिया। दिल धड़कने लगा। उसने सोचा बालाज को ना बताए, कहीं वो बिला वजह परेशान ना हो जाए, मगर उसी लम्हे ये खामोशी उसके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। अगले दिन बालाज मामूल के मुताबिक दफ्तर गया। माही ने सफाई के दौरान फोन चार्ज पर लगाया हुआ था। उसी वक्त वही अननोन नंबर दोबारा कॉल करने लगा। इस बार कॉल के साथ एक मैसेज भी आया। कॉल पर आओ, जरूरी बात करनी है। माही ने झिझकते हुए कॉल उठाई। जैन, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं शादीशुदा हूं। जैन की आवाज तंजिया थी। तो क्या हुआ, मोहब्बत खत्म नहीं होती निकाह के बाद? वैसे भी तुम्हें भुला नहीं सकता। जैन, ये आखिरी बार है, दोबारा फोन मत करना।
तुम मुझे नहीं रोक सकती माहिन, मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं। याद है वो दिन जब तुम लैब में बेहोश हो गई थी? माहिन का रंग उड़ गया, उसके हाथ लरसने लगे। क्या बकवास है ये? कुछ नहीं, बस वो तस्वीरें जो तुम भूल गई थी। अगर एक रात मेरे साथ ना गुजारना चाहो तो ये तस्वीरें खुद ही बालाज को पहुंच जाएंगी। फोन जमीन पर गिर गया। माहिन दीवार से टिक कर बैठ गई। दिमाग में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, अगर एक रात मेरे साथ ना गुजारना चाहो। शाम हुई तो बालाज घर आया। चेहरे पर दिन भर की थकन थी। माहिन ने कोशिश की कि खुद को नॉर्मल जाहिर करे। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। फिर भी तुम कुछ छुपा रही हो ना? नहीं बालाज, वाकई कुछ नहीं। मगर बालाज की नजरें जैसे उसकी रूह में झांक रही थी। माहिन, तुम जानती हो मुझे झूठ पसंद नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर तुम्हारा फोन क्यों बंद था सारा दिन? बस बैटरी खत्म हो गई थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहली बार दोनों के दरमियान एतमाद की लकीर पर दरार सी पड़ी। अगले दिन बालाज जब घर लौटा तो माहौल अजीब सा लगा। कमरे में हल्की रोशनी थी। माहिन फोन पर किसी से तेज लहजे में बात कर रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली जैन, सुना तुमने? ये सुनते ही बालाज के कदम वहीं जम गए। दरवाजे के करीब खड़ा वो लम्हों में अंदर तक हिल गया। फोन बंद होते ही उसने दरवाजा खोला। किससे बात कर रही थी? माहिन चौंक गई। किसी से नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने नाम सुना। जैन? वही जैन। माहिन की आंखों से आंसू बहने लगे। बालाज, मेरी बात सुनो। वो मुझे... खामोश। बालाज की आवाज सख्त थी मगर उसके अंदर तूफान उठ रहा था। तुम जैसे लोगों पर भरोसा करना ही मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें इज्जत दी, मोहब्बत दी, और तुमने बदले में क्या दिया? धोखा। बालाज, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे पास सबूत हैं। काफी है। उसने दरवाजा खोला। जाओ, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। माही ने लरसते हुए कहा। कहाँ जाऊं? मैं तुम्हारी बीवी हूं। थी, अब सिर्फ एक इल्जाम हो। दरवाजा जोर से बंद हुआ। बारिश की आवाज बाहर तेज हो गई और माहिन के अंदर एक दुनिया टूट गई। रात के अंधेरे में वो घर के बाहर बेंच पर बैठी रो रही थी। जैन का पैगाम फिर आया। अब तुम्हें यकीन आ गया ना? कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब सोचो, एक रात देखकर सब खत्म कर दो। माही ने फोन मुट्ठी में भेजा और चीख पड़ी। तुम हैवान हो जैन, मगर मैं कभी तुम्हारी नहीं बनूंगी। रात गुजर चुकी थी मगर माहिन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बालाज के अल्फाज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। तुम जैसे लोगों पर भरोसा करना ही मेरी गलती थी। इस जुमले ने जैसे उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, बाल बिखरे हुए, मगर निगाहों में एक जिद थी। मैं अपनी सच्चाई साबित करके रहूंगी, उसने आहिस्ता खुद से कहा। चाहे दुनिया मेरा यकीन ना करे, बालाज जरूर करेगा। सुबह की धुंध छटने से पहले वो घर से निकल गई। कोई मंजिल नहीं, कोई साथ नहीं, सिर्फ यकीन का बोझ। छोटे से बैग में चंद कपड़े और मोबाइल था, और वो मोबाइल ही उसकी आजमाइश का जरिया बनने वाला था। जैन अपने अपार्टमेंट में बैठा मुस्कुरा रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर माहिन के आंसू देखकर उसके चेहरे पर एक फातिहाना तबस्सुम फैल गया। बालाज खान, वो ज़ेरे लब बोला, तुमने मुझसे मोहब्बत छीनी थी, अब मैं तुम्हारा सुकून छीनूंगा। उसने कंप्यूटर पर एक फोल्डर खोला। पिक्स, दर्जनों तस्वीर, चंद धुंधली वीडियोस, सब वो तस्वीरें जो उसने एक दिन लैब में ली थी जब माहिन एक चॉकलेट खाने के बाद बेहोश हो गई थी। जैन ने हंसी दबाई। एक रात की नींद और इतना बड़ा हथियार, तुम्हें अंदाजा भी नहीं माहिन। उसी लम्हे उसकी बहन अनुषा कमरे में दाखिल हुई। ये तुम क्या कर रहे हो जैन? कुछ नहीं, काम कर रहा हूं। अनुषा ने शक भरी नजर डाली। मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम किसी गलत रास्ते पर हो। भाभी बहुत अच्छी हैं, उनके साथ कुछ मत करना। जैन ने सर्द लहजे में कहा। भाभी, वो मेरी जिंदगी की बर्बादी है अनुषा, तुम नहीं समझोगी। अनुषा खामोशी से बाहर निकल गई, मगर दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया।
2 दिन तक माहीन किसी जानने वाले के घर पनाह लिए रही। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस बार बार फ़ोन उठाती, जैन के मैसेजेस पढ़ती और मिटाती। फिर एक शाम वो मज़ीद बर्दाश्त ना कर सकी। उसने जैन को कॉल की। जैन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जैन की आवाज़ में फातिहाना चमक थी। आखिर तुम्हें समझ आ ही गया। कहाँ आऊँ? जहाँ तुम कहो, मगर वादा करो कि उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। वादा, अगर तुम एक रात मेरे साथ गुजार लो। माही ने मोबाइल बंद कर दिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं, ये रास्ता नहीं, मुझे बालाच तक सच पहुंचाना है। अगली सुबह वो सीधा बालाच के दोस्त शायान के पास पहुंची। शायान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। माहीन, तुम यहाँ? बालाच तो... मुझे उसकी परवाह नहीं कि वो क्या सोचता है। मुझे बस ये साबित करना है कि मैं बेकसूर हूं। शायान ने हिचकिचाते हुए कहा, जैन बहुत चालाक है, उसने सब प्लान कर रखा है। मैं जानती हूं, मगर मुझे बस एक रास्ता चाहिए। शायान ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं देखता हूं उसने तुम्हारे खिलाफ क्या मवाद जमा किया है। उसका एक दोस्त है जो हैकिंग जानता है, शायद हम वो तस्वीरें हासिल कर सकें। माही ने पहली बार एक उम्मीद की किरण महसूस की। उधर बालाच के दिल में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। वो दफ्तर में बैठा था, मगर जहन भटक रहा था। हर चेहरा, हर मंजर माहीन की याद दिला रहा था। एक साथी ने कहा, खान साहब खैरियत? आजकल बहुत खामोश हैं। बस कुछ जाती बातें हैं। सुना है बीवी चली गई। बालाच ने नजर उठाकर देखा। जाती बात है, इस पर बात ना करो। मगर दिल के अंदर एक जंग जारी थी, कभी गुस्सा, कभी खालीपन, कभी यादें। वो हर रात सोचता, अगर वो सच बोल रही हो, अगर वाकई जैन उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। मगर अगले ही लम्हे उसकी अनाव से रोक लेती। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इसी दौरान शायान ने जैन के सिस्टम से कुछ फाइल्स निकालने में कामयाबी हासिल की। रात को जब उसने माहीन को बुलाया, वो कांपते हाथों से लैपटॉप देखने लगी। स्क्रीन पर वही तस्वीर थी, मगर एक फाइल पर वीडियो का नाम था, लैब कैम क्लिप। वीडियो चली, धुंधला सा मंजर। जैन हाथ में चॉकलेट लिए माहीन के करीब आ रहा था। माहीन ने चॉकलेट खाई और चंद मिनट बाद उसका जिस्म ढीला पड़ गया। जैन ने इर्द गिर्द देखा, दरवाज़ा बंद किया और मोबाइल से तस्वीरें लेना शुरू कर दी। माहीन के लब कँपाने लगे। ये सबूत है शायान? हाँ, मगर बालाच को कैसे दिखाऊंगी? वो तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? नहीं करेगा, मगर अब मेरे पास खामोश रहने की कोई वजह नहीं। अगले दिन माही ने बालाच के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार किया। बारिश हो रही थी, वो भीगी खड़ी थी, मगर दिल मजबूत था। बालाच गाड़ी में आया तो चौंक गया। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें सच दिखाने आई हूं। मेरे पास वक्त नहीं माहीन, तुम्हारे पास भरोसा भी नहीं बचा ना। ये सब ड्रामा मत करो। ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है। उसने मोबाइल आगे बढ़ाया। बालाच के चेहरे पर जैसे खून जम गया। स्क्रीन पर जैन का चेहरा और बेहोश माहीन। बालाच चंद लम्हे साकित रहा, फिर जैसे उसकी सांसें लौट आईं। ये कब का है? उसी दिन जब तुमने मुझे वीडियो कॉल पर देखा था। वो कॉल भी इसी ने करवाई थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा है। बालाच के हाथ लरस गए। मैंने तुम पर शक क्यों किया? माहीन के आंसू बह निकले। क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम शक नहीं करोगे, मगर तुमने वो वादा तोड़ दिया बालाच। खामोशी छा गई। बारिश की आवाज अब रोने जैसी लग रही थी। बालाच ने आहिस्ता से कहा, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसी रात बालाच ने खुद को एक आईने के सामने पाया। चेहरे पर पछतावा, मगर आंखों में एक फैसला। जैन ने मेरी मोहब्बत को निशाना बनाया। अब मैं उसे वही दर्द दूंगा, वही एहसास, लेकिन किसी और जरिए से। उसने फोन उठाया, नंबर मिलाया। अनुषा जैन। हेलो बालाच, इस वक्त फोन? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कल दोपहर कैफे में मिल सकती हो? जी, मगर क्यों? सिर्फ तुमसे मशवरा चाहिए, अपने भाई के बारे में। अनुषा चौंकी। जैन के बारे में? क्या बात है? कल आओ, सब बताऊंगा।
फोन बंद हो गया। बालाज ने सर्द सांस ली। जैन, तुमने जो खेल शुरू किया था, अब वही खेल तुम्हारे घर में खेला जाएगा। रात के 11 बज रहे थे। बालाज अपनी ऑफिस मीटिंग से थका हुआ घर लौटा। घर में खामोशी थी, सिर्फ किचन से बर्तनों की हल्की सी आवाज आ रही थी। माहिन ने खाने की मेज सजा रखी थी। दीवार पर लगे घड़ियाल के साथ साथ उसके दिल की धड़कन भी तेज चल रही थी। तुमने खाया नहीं? बालाज ने जैकेट उतारते पूछा। आपका इंतजार कर रही थी। बालाज ने मुस्कुराकर सर हिलाया। मीटिंग लंबी हो गई, तुम्हें पहले खा लेना चाहिए था। माहिन ने नजरें झुकाई। आपके बगैर खाने का दिल नहीं करता। वो लम्हा जितना नरम था उतना ही भारी भी। बालाज ने खामोशी से खाना शुरू किया, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी थी। आजकल वो माहिन में एक बेचैनी सी महसूस कर रहा था। वो हंसती थी, बात करती थी, मगर जैसे कुछ छुपा रही हो। खाने के बाद वो सोफे पर बैठा मोबाइल देखने लगा। माहिन पानी का गिलास देने आई तो उसके हाथ में भी फोन था। बालाज ने गैर इरादी तौर पर नजर उठाई और लम्हे भर को रुक गया। माहिन के फोन की स्क्रीन पर किसी जैन का नाम चमक रहा था। वीडियो कॉल इनकमिंग। वक्त जैसे ठहर गया। बालाज की आंखों में वो चमक एक पल में सर्द हो गई। ये कौन है? माहिन चौंकी, घबराकर मोबाइल पीछे कर लिया। वो एक यूनिवर्सिटी का पुराना साथी है, गलती से। वीडियो कॉल रात के इस वक्त? बालाज की आवाज में वो गूंज थी जो एक ही लम्हे में भरोसा तोड़ देती है। मैं समझा सकती हूं। समझाने का वक्त बाद में रखना। अभी बताओ, ये जैन तुम्हारी जिंदगी में क्यों है? माहिन के लब लर्जे। बालाज, खुदा के लिए मेरी बात सुने, मैं किसी गलती में नहीं हूं। लेकिन उसके अल्फाज भी अधूरे थे कि जैन की कॉल दोबारा आ गई। बालाज ने तेजी से फोन छीना और स्क्रीन पर जैन का चेहरा नमोदार हुआ, मुस्कुराता, चालाक और बदतमीजी से पुर। ओहो, तो मियां साहब भी साथ हैं। कितनी वफादार बीवी है आपकी बालाज। ये कहते ही जैन ने कॉल काट दी। वो एक लम्हा ऐसा था जैसे किसी ने सारी दुनिया के रंग छीन लिए हों। बालाज की आंखों में गुस्से की सुर्खी थी। कितनी बेशरम हो तुम, धक्के देकर निकाला था, फिर मुंह उठाकर आ गई हो। उसका लहजा जहर बन चुका था। मैंने तुम्हें अपनी इज्जत समझकर दिल में जगा दी, और तुमने। माहिन का जिस्म लरस गया। बालाज, मेरी बात सुने, वो सब झूठ है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? अब ये नया ड्रामा है। बालाज ने तंजिया हंसी छोड़ी। क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूं तुम्हें? माहिन ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। खुदा की कसम, मेरा जैन के साथ कोई चक्कर नहीं। वो कमीना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास मेरी तस्वीरें हैं। कैसी तस्वीरें? बालाज की आवाज में जलजला था। माहिन ने सिसकियां भरते हुए कहा, जैन ने मुझे एक दिन यूनिवर्सिटी की लैब में बुलाया, एक चॉकलेट दी थी। मैं बेहोश हो गई, फिर उसने मेरी तस्वीरें ले ली। बालाज, मैं सच कह रही हूं, मैं बेगुनाह हूं। बालाज के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। आंखों में जंग थी। दिल मानना चाहता था, दिमाग इनकार कर रहा था। अगर ये सब सच है तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी। वो कहता था अगर तुम्हें बताया तो सब कुछ सोशल मीडिया पर डाल देगा। बालाज ने सर पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है माहिन? मैं तुम पर एतबार करूं या अपनी आंखों पर? मेरी सच्चाई पर कर लें बालाज, मैं आपके सिवा किसी की नहीं हूं। माहिन की आवाज में वही कपकपाहट थी जो सच्चाई की आखिरी पनाहगाह होती है। मगर बालाज के चेहरे पर अब खामोशी थी, वो खामोशी जो यकीन से ज्यादा खतरनाक होती है। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। फिलहाल तुम मेरे घर से बाहर चली जाओ, मुझे वक्त चाहिए। बालाज, ना रोको मुझे, ना खुद को मजीद जलील करो। दरवाजा बंद हुआ और माहिन के आंसू फर्श पर बिखर गए। कमरे में सिर्फ वो रह गई, वो, उसका भरोसा और जैन की सफाक हंसी जो फोन के स्पीकर से अब भी गूंज रही थी। शाम का वक्त था। सर्द हवा बालाज के कमरे में सनसनाहट फैला रही थी। वो अब कई दिनों से अकेला रह रहा था। न माहिन की आवाज, न उसकी हंसी, न वो नरम हाथ जो रोज चाय का कप उसके सामने रखती थी। कमरे की हर चीज वैसे ही रखी थी, मगर जैसे जिंदगी उन चीजों से रुखसत हो गई हो।
टेबल पर पड़ी माहिन का दुपट्टा पिन उसे बार बार देखने पर मजबूर करती। उसके दिल में हर लम्हे एक ही सवाल गर्दिश करता, अगर वो बेकसूर थी तो मैंने उसे क्यों धुतकारा? वो खुद को समझाता, नहीं, उसने झूठ बोला था, मगर अगले लम्हे ज़मीर चीख उठता, तो फिर उसकी आंखों के आंसू क्या थे? एक रात बालाज ने खुद को रोक ना सका। उसने जैन का नंबर निकाला और कॉल की। जैन ने फौरन फोन उठाया। उसके लहजे में फातिहाना तंज था। बालाज भाई, इतनी रात का याद कर लिया? बीवी की याद आ रही होगी ना? बालाज की आवाज सर्द थी। जो कुछ तुमने किया उसकी कीमत तुम्हें अदा करनी होगी। जैन हंस पड़ा। क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? सबूत मेरे पास हैं। तुम्हारी बीवी की इज्जत मेरे रहम पर है। बालाज ने कॉल काट दी, मगर वो लम्हा उसके लिए फैसला कुन साबित हुआ। उसने सोच लिया अब वो सच जाने बगैर नहीं रहेगा। अगले दिन वो माहिन की यूनिवर्सिटी गया। उसने वहां के एक पुराने लैब असिस्टेंट को बुलाया। मैं बालाज हूं, माहिन का शौहर। कुछ पुरानी बात जानना चाहता हूं। जैन अहमद के बारे में कुछ याद है तुम्हें? बूढ़ा असिस्टेंट चौंका। जैन अहमद? हाँ, वही लड़का जो एक बार लैब में किसी लड़की के साथ बंद पाया गया था। बालाज चौंक गया। कौन सी लड़की? चेहरा नहीं देखा, बस ये याद है कि बाद में वो लड़की बेहोश थी। हमने जैन को वहां से निकाल दिया था। बालाज के जिस्म से जैसे जान निकल गई। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ साहब, मैंने खुद देखा था। उसके बाद बालाज सीधा लैब के रिकॉर्ड रूम गया। पुरानी सीसीटीवी फाइल्स देखने की इजाज़त लेना आसान नहीं था, मगर उसने किसी तरह एक डेटा ड्राइव हासिल कर ली। घंटों उसने फुटेज खंगाली और आखिरकार एक मंजर सामने आया। जैन एक लड़की को चॉकलेट देते हुए, और फिर वो लड़की गिरती है और जैन तेजी से कुछ करता है। बालाज का दिल बंद होता जा रहा था। स्क्रीन पर लड़की के कपड़ों की झलक और उसके बाल। वो माहिन थी। उसने मॉनिटर बंद किया और गहरी सांस ली। मैंने गलती की। माहिन इस दौरान अपनी मां के घर थी। चंद दिनों से उसने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। किसी से बात नहीं करती, सिर्फ कुरान खोलकर बैठ जाती और कभी कभी बालाज की तस्वीर को देखती। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आंखों के कोने पहुंचे और दरवाजा खोला। सामने बालाज खड़ा था। चेहरे पर नदामत, आंखों में शर्मिंदगी। माहिन, उसने सिर्फ इतना कहा, मगर वो लफ्ज जैसे 1000 माफियों के बराबर था। माहिन ने नजरें नहीं उठाई। क्या लेने आए हैं? भरोसा तो आपने पहले ही खत्म कर दिया था। बालाज ने धीरे से कदम बढ़ाया। मैं सच जान चुका हूं। जैन ने जो कुछ किया मैंने सब देखा। मैंने तुम पर जुल्म किया, मगर अगर तुम चाहो तो मैं अब वो सब ठीक करना चाहता हूं। माहिन की आंखों से खामोश आंसू बह गए। और अगर मैं ना चाहूं? बालाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, मगर उसमें दर्द छुपा था। तब भी मैं तुम्हें जैन से बचाऊंगा, क्योंकि तुम बेगुनाह हो और मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी नहीं, अपनी इज्जत समझकर चाहा था। माही ने पहली बार नजरें उठाकर देखा। जैन बाज नहीं आएगा। उसके पास तस्वीरें हैं, वीडियोस। वो नहीं रुकेगा। बालाज ने सख्त लहजे में कहा। रुकेगा। अब वो मेरे सामने है। मैं जानता हूं उसे कैसे रोकना है। क्या मतलब? मैं वही खेल खेलूंगा जो उसने शुरू किया था। वो सोचता है मोहब्बत कमजोरी है। अब वो देखेगा कि मोहब्बत कैसे इंतकाम बन जाती है। माहिन के लब लरस गए। क्या करोगे तुम बालाज? बालाज ने हल्के मगर पुरअज़्म लहजे में कहा। मैं उसकी बहन अनूशा को इस्तेमाल करूंगा। जैन ने तुम्हें बर्बाद करने का सोचा था। अब मैं उसे उसके अपने लहू के दर्द से मरवाऊंगा। माहिन पीछे हटी। नहीं बालाज, ये ठीक नहीं। ये इंसाफ नहीं, बदला है। वो रुककर बोला, और जब मैं ये बदला पूरा कर लूंगा तब हम दोनों आजाद होंगे। माहिन की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। तो ये तुम्हारी सजा है मेरे लिए? बालाज ने आहिस्ता से कहा। नहीं, ये तुम्हारी नहीं, जैन की सजा है। लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां से हमें सुकून मिलेगा, चाहे थोड़ा देर से ही सही। माहिन खामोश खड़ी रही। उसके सामने खड़ा शख्स वही था जिससे वो मोहब्बत करती थी, मगर अब उसकी आंखों में मोहब्बत के साथ एक खतरनाक फैसला भी था।
रात का वक्त था। बालाज अपने कमरे में तन्हा बैठा था। हाथ में जैन की वो फुटेज थी जो उसने लैब से हासिल की थी। हर फ्रेम में एक ही सच चीख रहा था, जैन मुजरिम है। उसने गहरी सांस ली, मोबाइल उठाया और एक नया नंबर डायल किया। अनुषा अहमद। दूसरी तरफ से हल्की सी हैरान आवाज आई। जी, आप कौन? मैं बालाज बात कर रहा हूँ, जैन का दोस्त। अनुषा के लहजे में नरमी आ गई। ओह, भाई के दोस्त हैं। आपकी शादी की तस्वीरें देखी थी, आपकी बीवी बहुत खूबसूरत हैं। बालाज ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। शुक्रिया, दरअसल मैं काम के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था, अगर मुलाकात हो सके तो। जी, क्यों नहीं, कल यूनिवर्सिटी के कैफे में होंगी, आप आ जाएं। फोन बंद होते ही बालाज की आंखों में एक अज़म की चमक उभरी। ये खेल अब उसके हाथ में था। अगले दिन दोपहर का वक्त, अनुषा कैफे की एक मेज पर बैठी थी, किताबें खुली हुई थी। बालाज आया। सफ़ेद शर्ट, गहरी नीली जीन्स, चेहरे पर वकार और हल्की संजीदगी। हेलो अनुषा, इंतज़ार तो नहीं करवाया? अनुषा हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, बिल्कुल नहीं, जैन अक्सर आपका जिक्र करता था, कहता था आप बहुत मुख्तलिफ हैं। बालाज ने चाय मंगवाई, शायद इसलिए कि मैं ताल्लुकात को खेल नहीं समझता। अनुषा ने चौंक कर देखा। खेल? छोड़ें, कुछ ज़ाती बात थी। आप बताएं क्या कर रही हैं आजकल? एमफिल कर रही हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। गुफ्तगू हल्की फुल्की बातों से आगे बढ़ी। बालाज के अंदाज में नरमी, वकार और एक खास भरोसा था, ऐसा भरोसा जो दिलों में जगह बना लेता है। अनुषा की आंखों में पहली बार चमक आई। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसे शख्स से बात कर रही हो जो सच में उसके एहसास को समझता है। अगले चंद हफ्तों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कहीं कैफे में, कहीं पार्क में, कभी किसी सेमिनार के बाद। बालाज उसे हमेशा इज्जत से मुखातिब करता, मगर बातों के बीच एक नरम सा लम्स आ जाता, ऐसा जो दिल के बंद दरवाजे खोल देता है। एक दिन अनुषा ने खुद कहा, आप कभी मुस्कुराते नहीं, जैसे दिल में बहुत कुछ छुपा रखा हो। बालाज ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई। छुपाने के लिए ही तो मुस्कुराहटें होती हैं अनुषा। वो लम्हा खामोश मगर भारी था। अनुषा ने पहली बार महसूस किया कि वो उस शख्स के लिए कुछ महसूस करने लगी है। दूसरी तरफ जैन अपने खेल में मुतमईन था। माहिन के फ़ोन पर अब भी धमकी आमेज पैगामात आते, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बहन किसी ऐसे जाल में जा रही है जिसका जाल साज अब खुद बालाज है। एक रात बालाज ने अनुषा को एक फाइल दिखाई। ये मेरी कंपनी का नया प्रोजेक्ट है, तुम चाहो तो बतौर पार्टनर शामिल हो सकती हो। अनुषा हैरान हुई। मैं? इतना भरोसा आपको मुझ पर? बालाज ने मुस्कुराकर कहा, भरोसा तब दिया जाता है जब दिल मुतमईन हो। अनुषा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो दुख और मजबूती के बीच कहीं भटक रही थी। काश जैन भी आप जैसा समझदार होता। बालाज के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई, मगर वो बोला कुछ नहीं। चंद हफ्ते और गुजर गए। अब अनुषा का ज्यादा वक्त बालाज के साथ गुजरता। तस्वीरें, ऑफिस की मीटिंग्स और कभी कभार लंबी ड्राइव्स। जैन को यह सब खबर नहीं थी और बालाज उसी खामोशी को अपना हथियार बना रहा था। एक दिन बालाज ने जानबूझकर अनुषा के मोबाइल से चंद तस्वीरें खींची जब वो एक इवेंट में उसके करीब थी। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला और चंद मुख्तसर वीडियोस महफूज कर ली। खेल मुकम्मल हो चुका था। रात के 1 बजे जैन के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। नई तस्वीरें देखना चाहोगे? भेजने वाले का नाम था बालाज खान। जैन का रंग फक हो गया। उसने तस्वीरें खोली और दुनिया जैसे रुक गई। अनुषा, उसकी अपनी बहन, बालाज के साथ हंसती हुई, एक तस्वीर में उसके कंधे पर सर रखे हुए, दूसरे में बालाज ने उसके गिर्द बाजू रखा हुआ था। फिर एक वीडियो चली। अनुषा किसी कम रोशनी वाले कमरे में बैठी और बालाज का साया सामने। जैन के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? ये तुमने क्या कर दिया बालाज? कॉल लगा दी। बालाज की आवाज पुरसकून थी। कैसा लगा खेल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ? रुको, वही लहजा रखो जो तुमने माहिन के साथ रखा था।
याद है तुमने कहा था अगर एक रात ना मिली तो वो तस्वीरें वायरल कर दूंगा। अब सुनो, अगर तुमने माहिन की कोई भी तस्वीर, कोई वीडियो किसी को दिखाई तो मैं तुम्हारी बहन की सब तस्वीरें पब्लिक कर दूंगा। जैन की आवाज भर आ गई। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूं जैन, ये वही खेल है जो तुमने शुरू किया था, बस अब खिलाड़ी बदल गए हैं। कॉल बंद हो गई। जैन का मोबाइल हाथ से गिर गया। अनुषा की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने नाच रही थीं और उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने किसी की जिंदगी के साथ खेलकर अपने ही घर का सुकून तबाह कर दिया। बलाज ने फोन बंद किया और गहरी सांस ली। माहिन उसके सामने बैठी थी, आंखों में खौफ और हैरत। क्या सब खत्म हो गया? बलाज ने इस बात में सर हिलाया। अब सिर्फ एक डील बाकी है। माहिन ने आहिस्ता से कहा। कौन सी डील? जैन और मेरे दरमियान। वो अपनी तस्वीरें मिटाएगा, मैं अनुषा की, और फिर कभी कोई किसी की जिंदगी में कदम नहीं रखेगा। माही ने खामोशी से आंखें बंद कर लीं। कमरे में सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे इंतकाम की एक भारी गूंज छुपी थी। सुबह के धुंधले आसमान में रोशनी फैल रही थी। बालाज लॉन में खड़ा चाय के कप के साथ खामोशी से सोच रहा था। रात का वो लम्हा, जैन की कांपती हुई आवाज, अनुषा की तस्वीरें, सब उसके जहन में बार बार घूम रहे थे। इंतकाम मुकम्मल था, मगर सुकून कहीं नहीं था। पीछे से माहिन की आहट सुनाई दी। तुमने रात सोए भी या नहीं? बालाज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। नींद शायद उन लोगों के लिए होती है जिन्हें कोई दुख ना हो माहिन। माहिन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। दुख खत्म करने के लिए तुमने जो किया वो जरूरी था, मगर दिल मुतमईन है तुम्हारा? बालाज ने नजरें हटा ली। बदला कभी सुकून नहीं देता, सिर्फ खालीपन छोड़ जाता है। उसी वक्त जैन के घर में तूफान बरपा था। अनुषा दरवाजे पर बैठी रो रही थी। भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग थी। जैन ने गुस्से से फाइल मेज पर दे मारी। चुप रहो, तुम्हें पता भी है वो शख्स कौन है? वो मेरा दुश्मन है। अनुषा ने आंसू पहुंचे। दुश्मन तुम्हारा है, मगर तुम्हारे किए का शिकार मैं क्यों बनी? तुमने भी तो एक लड़की की इज्जत को तमाशा बनाया था। क्या कभी सोचा कि उसका दिल भी मेरी तरह टूटा होगा? जैन के लबों से आवाज ना निकली। कमरे की खामोशी में सिर्फ अनुषा के आंसुओं की बूंदें सुनाई दे रही थी। उसने अपना बैग उठाया। मैं जा रही हूं जैन, तुम्हें अपनी इज्जत अजीज है तो रख लो, मगर मुझे अब अपनी खामोशी अजीज है। दरवाजा बंद हुआ और जैन जमीन पर बैठ गया, जैसे सारी जमीन उसके नीचे से निकल गई हो। शाम को बालाज के ऑफिस में जैन आया, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे स्याह हल्के। मैं आ गया हूं। बालाज ने फाइल से नजरें उठाई। पता था आओगे, बैठो। जैन खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। शर्त याद है ना? जैन ने सर झुकाकर कहा। हाँ, सब तस्वीरें मिटा दूंगा, माहिन का नाम कभी जबान पर नहीं लाऊंगा। बालाज ने मोबाइल आगे किया। ये अनुषा की तस्वीरें हैं, मैंने उन्हें डिलीट कर दिया है, लेकिन एक बात याद रखना जैन, कभी किसी के भरोसे को खेल ना समझना। जैन के होंठ कप आ गए। मैंने गलत किया, मानता हूं, मगर तुमने जो किया वो भी किसी सजा से कम नहीं। तुमने मेरी बहन को इस्तेमाल किया, तुम मुझसे मुख्तलिफ नहीं रहे। बालाज ने आहिस्ता से कहा। शायद यही सच है, कुछ बदले ऐसे होते हैं जिनमें जीत कर भी इंसान हार जाता है। दोनों खामोश हो गए। कमरे की फिजा में माजी की गूंज तैर रही थी। रात को माहिन छत पर खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर नरम चमक डाल रही थी। बालाज पीछे आकर रुका। सब खत्म हो गया माहिन, जैन अब कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। माहिन ने आहिस्ता से कहा। और जो दिल में बाकी है वो कैसे मिटेगा बालाज? बालाज ने नजरें नीचे कर ली। मैंने तुम्हें इंसाफ दिया, मगर तुम्हारे जख्म शायद मेरी जीत के बाद भी बाकी रहेंगे। माही ने आंखों में नमी लिए कहा। काश तुम बदला लेने के बजाय मुझे समझने की कोशिश करते। मैं तुम्हारी ही थी, हमेशा तुम्हारी, बस तुमने यकीन करना छोड़ दिया था।
बालाज के अंदर कुछ टूट सा गया। यकीन वही तो सबसे मुश्किल होता है माहीन। माही ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, शायद अभी देर नहीं हुई बालाज, सौदा खत्म हो गया, अब शुरू करो भरोसा। बालाज ने कदम आगे बढ़ाए मगर फिर रुक गया। अगर तुम जा सको तो चली जाओ माहीन, मैं चाहता हूं तुम मेरी बदगुमानी से आज़ाद जिंदगी जियो। माही ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आज़ादी तब मिलती है जब दिल सुकून पाए। मैं कहीं नहीं जा रही बालाज, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं, समझकर रुकने आई हूं। सुबह जब रोशनी दरवाजों पर दस्तक दे रही थी, माही ने चाय बनाई, बालाज के लिए कप रखा और पहली बार दोनों ने एक साथ खामोशी में चाय पी। कुछ लम्हों बाद बालाज ने धीरे से कहा, बदले के बाद जो सुकून मिला वो खामोशी की तरह खाली है। अब शायद वक्त है कि हम दोनों दोबारा जीना सीखें। माही ने हल्की आवाज में कहा, और भरोसा भी। कमरे में चाय की खुशबू फैल गई। बारिश के बाद की वो सुबह खुनक थी। बालाज घर की बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। बादल जैसे किसी नए आगाज की नवीद दे रहे थे। हवा में नमी थी, मगर दिन में पहली बार सुकून सा महसूस हो रहा था। नीचे शहर में माहीन पौधों को पानी दे रही थी। बालाज ने उसे कुछ देर चुपचाप देखा। वही नरमी, वही सादगी, मगर अब उसके चेहरे पर एक मजबूत औरत की चमक थी। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? माहीन ने ऊपर देखकर मुस्कुराकर पूछा। बालाज के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, शायद अब इस घर में चाय से ज्यादा तुम्हारी मौजूदगी की खुशबू जरूरी है। माही ने नजरें झुकाईं और अंदर चली गई। ये वही बालाज था जो कभी शक, गुस्से और इंतकाम का साया बन गया था, और ये वही माहीन थी जिसने सच बोलने के बावजूद इल्जाम सहा। मगर अब दोनों के बीच एक खामोश माफी थी। दोपहर के वक्त बालाज ने फाइल्स बंद की और लाउंज में आ गया। माही ने खाने की मेज पर 2 प्लेटें लगाईं। आज दफ्तर नहीं जाना? नहीं, आज सोचा तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूं। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो कमी थी हमारी जिंदगी में, वक्त की। बालाज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वक्त नहीं, समझ की। हम दोनों ने बातें कम की, गुमान ज्यादा, शायद इसीलिए सब बिगड़ा। माही ने सर झुकाकर कहा, अगर तुम मुझसे एक बार पूछ लेते बालाज, तो सब कुछ मुख्तलिफ होता। बालाज ने उसके हाथ पर हाथ रखा। अब पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझे दोबारा मौका दोगी एक नई जिंदगी के लिए? माहीन की आंखों में नमी थी, मगर लबों पर सुकून। यही तो मेरा ख्वाब था कि तुम खुद वो सवाल करो जिसका जवाब हमेशा हां था। रात के वक्त उन दोनों ने छत पर बैठकर चाय पी। नीचे से पुराने रेडियो पर कोई पुराना गीत चल रहा था। जिंदगी में अगर दोबारा सब कुछ ठीक हो सकता है तो क्या तुम करोगे? माही ने नरमी से पूछा। बालाज ने कहा, अगर दोबारा मौका मिला तो मैं पहले दिन से तुम पर यकीन करना सीखूंगा। मोहब्बत शक से नहीं, भरोसे से जिंदा रहती है। माहीन मुस्कुराई, और मैं भी हर बात छुपाने के बजाय तुम्हें बताऊंगी। मोहब्बत में छुपाना भी धोखा लगता है, चाहे नीयत कितनी ही साफ क्यों ना हो। हवा के झोंके ने उनके बीच की खामोशी में नरमी भर दी। वो खामोशी अब बोझ नहीं थी, तसल्ली थी। दूसरी तरफ शहर के एक और हिस्से में जैन अपनी बहन अनुषा के साथ नाश्ता कर रहा था। क्या तुमने वाकई सब तस्वीरें डिलीट कर दी हैं? अनुषा ने नरमी से पूछा। जैन ने सर झुकाकर कहा, हाँ, वो सब खत्म हो गया, जैसे मेरा गुरूर। अब सोचता हूं काश मैंने पहले ही अपनी बहन जैसा सोच लिया होता। इज्जत किसी के पासबान होने से नहीं, खुद अपनी नीयत से बनती है। अनुषा ने चाय का घूंट लिया। शायद ये सजा भी जरूरी थी ताकि तुम समझ सको। मैं अब वापस कॉलेज जा रही हूं, नई शुरुआत के लिए। जैन ने धीरे से कहा, मैं भी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं, बगैर नफरत, बगैर इंतकाम के। चंद हफ्ते बाद माहीन और बालाज अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे। घर में सादगी थी, मगर दिल में सुकून। बालाज ने केक काटने से पहले कहा, 1 साल पहले तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी थी, और आज मैं तुमसे एक वादा दोबारा करना चाहता हूं कि
किसी साय को तुम्हारे ऊपर आने नहीं दूंगा। माहिन की आंखों में आंसू थे। और मैं वादा करती हूं कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, चाहे वो कितनी भी तल्ख क्यों ना हो। केक काटते हुए बालाच ने हंसते हुए कहा, चलो अब ये वादे चॉकलेट से मीठे करें। दोनों हंस पड़े और उनके बीच वो मोहब्बत पलट आई जो कभी जख्मों के नीचे दफन हो गई थी। कुछ देर बाद जब मेहमान चले गए, बालाच ने खामोशी से माहिन का हाथ थामा। तुम जानती हो मैं कभी मानता नहीं था किस्मत को, लेकिन आज लगता है जो कुछ हुआ उसने हमें एक दूसरे की कदर सिखाई है। माहिन ने हल्की आवाज में कहा, शायद कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि बंदा जुड़ने की अहमियत समझ सके। बालाज ने सर झुकाकर कहा, अब अगर जिंदगी में कोई अंधेरा आया तो हम साथ चिराग जलाएंगे, अलग अलग नहीं। माही ने उसके कंधे पर सर रख दिया, क्योंकि इस बार मोहब्बत कमजोर नहीं आजमूदा है। चंद दिन बाद जैन ने बालाज को एक छोटा सा लिफाफा भेजा। अंदर एक नोट था, मैं जा रहा हूं एक नई जिंदगी शुरू करने। तुमने मुझे बदला, शक से नहीं बल्कि आईने की तरह सच दिखाकर। माहिन को खुश रखना, क्योंकि उस जैसी औरत किस्मत वालों को मिलती है। जैन। बालाज ने वो नोट पढ़कर खामोशी से मुस्कुरा दिया। माहिन पीछे से आकर बोली, क्या लिखा है? बालाज ने लिफाफा तय किया। एक इख्तिताम जो दरअसल एक आगाज है। रात को जब रोशनी मध्यम हुई, माहिन ने खिड़की के पार चांद देखा, साफ, रोशन और बेदाग। बालाज ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कितनी बदल गई हो तुम माहिन। माहिन ने हल्के से कहा, नहीं मैं वही हूं, बस अब मैं खुद पर यकीन करना सीख गई हूं। बालाज ने उसके कान में सरगोशी की, और मैं तुम पर। चांदनी ने उन दोनों को घेर लिया जिसे खुदा ने इस कहानी पर मोहर लगा दी हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।